Namaste, hi, welcome to Kids Gurukul. This is Deepa Jijesh. Hope you all are doing well. And yes, we were discussing about to increase the learning ability of a child or learning ability, how to increase learning ability. And the first step we already discussed is that to increase listening power of a child. And the first step should be to increase or to make anyone to increase learning ability. The first step is to make them listen first, and the second step is to make them read. Okay, if a child is too small, okay, now he or she is able to listen carefully. Now the second step will be to read aloud. If the child is too small and is not able to read, then someone can read and make them listen. Okay, this can be done for a small kid. But if the kid can read it, so let them read it. Let them increase the habit or make a habit to every time read a new sentences, words they come across. Let them make a join words through phonic, okay, using phonics, okay. Using phonics they can read it, a word, 2-letter word, 3-letter word, and then up to increasing a word and then a sentences. And then at the age group wise they can start reading small stories, phrases. And yes, this will make the kid or a child to have a habit to know more, and they will automatically increase the power of reading. And after reading, as we already know that after listening power also, they have started expressing what they have understood. Now while they read, just make them a habit of just read it. They don't have to understand it. They go to depth and understand whatever what they have been reading it. Okay, so let them only read it. They don't have to understand or fully explain what they have understood by reading it. Just reading aloud, so that a fluency of voiceover will come, and they will have a confidence of reading with words, with letters. They will be with they will gel with the words, sentences, and automatically they will increase the habit of reading, and they will come across new stories, and they will start to express in sentences, make sentences, use of idioms, phrases, etc, etc. So yes, to increase learning ability of a kid, one must have a listening power, so that one can listen it and understand, try to grasp everything. And the second step will be it's increasing reading habit. Make them read, ट्राई टू मोटिवेट देम, क्यूरियोसिटी जगाए, ताकि हम उस बच्चे को पढ़ाना सीखें. वो जब बच्चा पढ़ेगा ना, तो वो उसे एक जानकारी मिलेगी, नए नए वर्ड्स से वो घुल मिल जाएगा. दे विल जेल विद द वर्ड्स. फोनिक्स, छोटे बच्चे हैं तो वो एज ग्रुप के हिसाब से आप अपने हिसाब से समझ सकते हो. जैसे कि अगर आपको एक डेफिनेटली बोलूँ कि नहीं, ये छोटा बच्चा है, इसे पढ़ने नहीं आता, तो आप उसे बताएं ये क्या है, ये ऐसे है. तो वो बच्चा क्या पहले ऑलरेडी सुनता है, लिसनिंग पावर तो है ही. तो अब वो रीड कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, वो बुक को देख रहा है या फिर कोई चीज़ों को देख रहा है या सुन रहा है. तो वो रीड अलाउड करते समय दे विल कम अक्रॉस सेंटेंसेस विद डिफरेंट सिचुएशन. अगर स्टोरी है तो बच्चे को अच्छा इंटरेस्ट बनाए रखने में काम आएगा. सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल इन मेकिंग देम, और बोलते ना, ग्रो करे, क्यूरियोसिटी हो कि क्या होगा आगे, क्या होगा आगे, क्या होगा. क्योंकि हम एक स्टोरी या चीज़ हम फुल्ली एक थ्रू में नहीं पढ़ा के या सुना सकते, या फिर उसे रीड करने को बोलेंगे. तो फर्स्ट स्टेप विल बी, चलो आज 5 लाइन पढ़ा है, या फिर 1 लाइन, छोटा बच्चा है तो 1 लाइन, 1 सेंटेंस पढ़ा है, दूसरे दिन वो 2 सेंटेंस पढ़ेगा, या वर्ड से थ्रू लेटर 2-letter वर्ड्स, 3-letter वर्ड्स. सो इससे क्या होगा, दे वॉइस ओवर, बोलते हैं ना, ऑडियो क्लियर होगा, क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स, जैसे प्रोनाउंसिएशन जो है उसका क्लियर होगा.
लाउडली रीड करने से क्या होता है, हमारे टंग एक्सरसाइज, वॉइस, फेस एक्सरसाइज, एक्सप्रेशन वो देख देख के सीखेगा. इट विल बी व्हाट यू कैन टेल, बहुत एक स्किल डेवलप करेगा. वॉइस ओवर कैसे उसको प्रोनाउंस करते हैं, वो वर्ड्स को बोलने के लिए हमने क्या क्या फ़ोनिक इस्तेमाल किया, एक सेंटेंस बनाने के लिए हमने उसको कैसे खींचा, कहाँ पर पॉज लिया, ये जो छोटी छोटी चीज़ें डिटेल्ड है उसे कहो फुल स्टॉप आते समय. जैसे सेंटेंस में जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे कि वो बड़ा बच्चा है, ये प्राइमरी सेक्शन का है, तो उसे सेंटेंस तो पढ़ना आना ही चाहिए, राइट. तो जब सेंटेंस पढ़ता है तो उसे बताओ फुल स्टॉप आते समय थोड़ा सा पॉज लेना है, कॉमा आते समय पॉज लेना है, एक्सक्लेमेटरी साइन आते समय एक्सप्रेस करना है, ओ माय गॉड, ऐसे सब जो जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ग्रामर में यूज़ होता है, वो तभी का तभी क्वेश्चन मार्क आते समय क्वेश्चन पूछना है, ये सारी चीज़ें बता दोगे तो उसका रीडिंग वोकैबुलरी तो ठीक होगा ही होगा. अब वो लिसनिंग के साथ रीड भी कर रहा है तो उसे समझना ज़रूरी है. वो रीड कर रहा है तो उसका वर्ड के साथ कनेक्शन बढ़ेगा और आगे उसे ऑलरेडी एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं. वो जैसे जैसे सीखता जाएगा उसे उसका मीनिंग पता चलेगा. दे विल कम अक्रॉस मैनी मीनिंग and their vocabulary will also increase and also they will come across new vocabulary, small detail में एक्सप्रेशन ठीक हो गए. सो बोलते ना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी हो जाएगा साथ में. तो ये शुरुआती से अगर हम छोटे बच्चे जो होते हैं ना वहाँ से लेवल स्मॉल से प्राइमरी लेवल से ही शुरू करें तो जब तक वो बड़े हो जाते दे विल बी लाइक फ्लुएंटली स्पीकिंग इंग्लिश ऑल्सो. एंड क्या उनका तो अपना ही एक अलग सा टैकलिंग पावर होगा और स्ट्रगल तो नहीं होगा ना, स्ट्रगल तो नहीं कर रहे कि हाँ मुझे ये नहीं आ रहा है. तभी दे विल हैव देयर ओन लर्निंग एबिलिटी. तो इससे टीचर या फिर पेरेंट्स को कुछ हार्ड वर्क या डिफ़िकल्टी से के थ्रू वो बड़े एज में नहीं जाना पड़ेगा. जहाँ पर हम देखते हैं कि बड़े एज के बच्चे भी आजकल उन्हें स्मॉल बेसिक थिंग्स नहीं आते बिकॉज टिल 8th स्टैंडर्ड तो ऑलरेडी रूल है कि पास हो जाएंगे. सो दे हैव नॉट एट ऑल टेकन सीरियस. हम बच्चों पर पूरा थोप नहीं सकते कि उन्होंने सीरियस नहीं लिया, पेरेंट्स ने भी नहीं लिया. सिंपल है. अरे बच्चा पास हो रहा है 8th स्टैंडर्ड तक, 9th में तो उसको नया नया सब्जेक्ट आ रहा है तो उसे उससे टैकल करने में कितना स्ट्रगल, कितना हार्डवर्क लगता है, क्या क्या वो प्रॉब्लम से गुजरता है, ये उनको ही पता है. हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते व्हाट दे आर गोइंग थ्रू इट. सो वो स्ट्रगल को, वो तभी डिफ़िकल्टी फेस करने से अच्छा है हम शुरुआती से उनको एक प्लेटफॉर्म दे दें जहाँ पर वो एक्सप्लोर करें, छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ों तक पहुँचे. एंड एट द एंड ऑफ द टाइम दे विल रियलाइज़ कि नहीं ये स्टार्टिंग से किया है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, अब इस पर जो भी बिल्ड होगा वो तो मस्त पूरा लॉन्ग लाइफ चलेगा. So yeah, this is the main thing. So increasing the learning ability, first we have to make them listen and the second step is to read, make them read it. Yes. So hope without stretching too much this video and going in detail about the grammar part, that will come in the next video, that next, not the coming video of teaching, how to teach and all those things. But here we are just learning, making to increase about talking about learning ability. So एक बच्चा सीखता कैसे है, हम भी कैसे सीखे, तो पहले सुने और फिर दूसरा पढ़े. और पढ़ते समय एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए हमें उसका सिलेबस क्रिएट करना है ताकि उसे भी आसानी हो, उसे भी डिफ़िकल्टी ना हो, ताकि वो छोड़ ही दे पहले ही देख कर. सो येस, विदाउट स्ट्रेचिंग टू मच. सो दिस here we end the learning ability part 2. See you soon in the next video. Till then, bye bye, take care and keep smiling.